Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video we are going to talk about scrambled string memoization DP. Okay, so in previous video we have already studied scrambled string recursion. Okay, मैंने आपको उस वीडियो में scrambled string की प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझाई थी. उसके बाद मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड यू recursion of a scrambled string, plus I have also told you or explained you that how this scrambled string question is related to MCM. Okay, how is the standard version of MCM question, how you can relate it with matrix chain multiplication. Okay, so basic main part of a scrambled string है that is its problem statement. ठीक है, तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए that what is exactly scrambled string. Okay, and after that उसका जो recursion version है that is an easy part. Okay, obviously if you know how to approach matrix chain multiplication questions, then मैंने already recursion discuss कर लिया in previous video. So in this video we are going to discuss its memoization DP. Obviously if you haven't watched previous video, just go and watch that video, because obviously recursion is a prerequisite for this video. And in this video I will firstly discuss its problem statement in brief. मैं एक बार exactly clear कर दूंगा that what is the problem statement of a scrambled string problem in DP, and after that we will see memoization of recursion code. Okay, but before this let's just see what is Newton School. So as we all know that Newton School is an e-learning platform who has different programs especially designed for you, and those programs are pay after placement program and launchpad initiative. So under pay after placement program, what they do is they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in different companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's, Unacademy, and many more different companies which they have tie up with. So if you want to know more about this program, you can just come to newtonschool.co, and as you can see here that applications for full stack development course October batch is open right now, so you can apply now. Okay, and most amazing thing about this program is that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies for minimum of 5 lakh CTC. Okay, so just go to their pay after placement program, and if you want to get placed as a full stack developer, you can opt this course. Second thing they have for you is launchpad initiative, under which if you want to learn or start learning for free, absolutely free, you can just come to their website, log in or sign up for free and start learning. They have different courses especially designed for you, and after completion of any course you will also get certificates, and you have quizzes there to solve them, and you also have free lectures, and you have Newton School IDE also where you can do the coding part. Okay, so everything is here for you. You can just come to newtonschool.co and start for free. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to it and subscribe this YouTube channel where we are posting regular videos for you. We have playlists for dynamic programming, for data structures and algorithms, for C++ basic to advanced, for JavaScript also. You can just go to YouTube and check this YouTube channel. Now let's just start with today's video, and that is scrambled string memoization DP. So firstly मुझे इस क्वेश्चन का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना था. ठीक है, तो मैं बहुत क्लियरली अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये तो समझ में आ गया होगा कि दैट स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं. ठीक है, एंड हेयर द नोट इज ऑल्सो देयर दैट स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग इज नॉट एज सेम एज एनाग्राम. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. अब स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग मैं दोबारा नहीं बताने वाला. अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. अब मैं ये बात करने वाला था कि हाउ यू आर गोइंग टू चेक दैट if there are two strings S1 and S2, इन दोनों में तुम कैसे चेक करोगे that S2 is a scrambled string of S1. ओके, एंड उसके लिए हम कौन सी टेक्निक फॉलो करने वाले हैं, मेन स्टैंडर्ड टेक्निक और फॉर्मेट मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का. तो अगर मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, सिंपली जस्ट इटरेट इन द चेन एंड कंसीडर ऑल द पॉसिबल पॉसिबिलिटीज और कंसीडर एवरी पॉसिबिलिटी वाया रिकर्जन. ठीक है, और फिर उसी रिकर्जन को हम क्या कर लेते हैं, मेमोजाइज टू ऑप्टिमाइज द कोड. ओके, सो दिस इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन अप्रोच. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज इन दिस. सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग S1 है और एक स्ट्रिंग S2. अगर मैं इन दोनों से दो सब प्रॉब्लम्स बनाऊँ, कोई भी मेरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ABCDEF, मैं इसकी एक दो सब प्रॉब्लम्स कैसे बना सकता हूँ. पहली चीज़, पहली अप्रोच मेरी क्या होगी, मैं इसको कहीं से
पार्टीशन करूँ इसका, तो मेरी दो सब प्रॉब्लम्स कौन सी बन गई, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने इस S1 से दो सब प्रॉब्लम्स बनाई P1 और P2, और यू कैन से दो सब स्ट्रिंग्स बनाई। S2 से भी मेरी दो सब स्ट्रिंग्स बनेंगी P3 एंड P4 यू कैन से, ठीक है। अब स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, वी कैन स्वैप चाइल्ड्स ऑफ एनी नॉन लीफ नोड, वी कैन स्वैप चाइल्ड्स ऑफ एनी नॉन लीफ नोड, ठीक है। तो हेयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों की सब प्रॉब्लम जब S1 S2 की बनी हो तो उसमें से कोई के चाइल्ड स्वैप हो गए, ठीक है। अगर मान लो P3 के एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि ये P3 P4 ही रहा हो, नो स्वैपिंग, एंड स्वैपिंग हो गई है, तो ये कैसा हो गया होगा अब ऑब्वियसली P4 P3। अब ये जो मेन स्ट्रिंग S2 है वो कैसी बन गई होगी, P4 P3, ठीक है। और अगर स्वैपिंग नहीं होगी तो ये कैसी रही होगी, P3 P4। तो दो पॉसिबिलिटी हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है एग्जैक्टली, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि ये जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है ये स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ दिस तो नहीं है, और अगर स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ दिस है तो आंसर यस। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है कि हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इस चीज़ के साथ, सिंपली P4 P3, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या आती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी जो ABCD है, ठीक है, मैंने बोला कि P1 और P2 में क्या है, P1 में AB है एंड P2 में CDEF है, ठीक है। और P3 में भी सपोज तुम्हारी कोई स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग थी जो कि थी CDEFAB, ठीक है। तो P3 तुम्हारी क्या हो गई, सिंपली CDEF और ये AB हो गए, मान लो इस तरह से हो गए। और या फिर तुम अगर ये स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है तो तुमने मान लो पार्टीशन यहाँ से किया, तो तुमने बोला कि CDEFAB कुछ ऐसा है, ये मान लो फॉर सपोज हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये सिंपली बोलूँगा कि अभी तो तुम्हारी P2 और P3 बराबर नहीं है, ठीक है। इन केस अगर सोच लो कि ये CDEF की जगह कोई और है, ये ऐसी है कुछ EFCD है, ठीक है। तो अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट जो P3 है इज अ स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग ऑफ P2 ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से मेरा सिंपली कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम P2 और P3 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कोई दो सब प्रॉब्लम्स को कंपेयर करेंगे तो उसको भी हम वाया रिकर्जन फंक्शन ही कंपेयर करेंगे, एंड इट इज ऑब्वियस, ठीक है। अगर मैं P1 और P2 P3 को कंपेयर कर रहा हूं तो हम उसको वाया रिकर्जन फंक्शन ही कंपेयर करेंगे, बिकॉज हेयर इज अ पॉसिबिलिटी कि CDEF और EFCD भी एक दूसरे की स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग हो, और ये ABCD था, ठीक है, और ये कंप्लीट ABCD की एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग कुछ ऐसी बन के आए, दैट इज EFCDAB, कुछ ऐसी बन के आए, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो स्वैपिंग हम स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग्स में करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सपोज मैंने बोला था कि कोई भी नॉन लीफ नोड्स में स्वैपिंग कर सकते हो सब स्ट्रिंग्स की और सब प्रॉब्लम्स की, किसी एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग्स की, ठीक है, दो चाइल्ड्स की। अब स्वैपिंग ज़रूरी तो नहीं है एक ही हुई हो, मैंने ऐसे P1 P2 बनाया, आप P3 की कोई दो चाइल्ड्स बने होंगे, P3 डैश और P3 डबल डैश, तो हो सकता है इन दोनों में भी स्वैपिंग हो गई हो, इन दोनों में स्वैपिंग हो गई होगी तो P3 में भी स्वैपिंग, मतलब P3 भी चेंज हो गया होगा, जैसे मैंने CDEF को क्या कर दिया था EFCD, ठीक है। तो इन दिस वे ओनली तुम्हारा जो दैट्स वाई जो हम रिकर्जन फंक्शन नीचे तक कॉल करते जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम P2 को P3 के स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है, फाइन। अब यहाँ तक मेरा हो गया कुछ रिकर्जन का इंट्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया कि रिकर्जन एग्जैक्टली होता कैसे, ठीक है, और यही मेरा रिकर्जन का इंट्यूशन था। अब हम चलते हैं कोड में, और कोड में हमें सिंपली क्या करना है, कोड को मेमोजाइज करना है। मेमोजाइज के कुछ सिंपली 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप कि तुम्हें एक कंटेनर बनाना है जिसमें तुम रिजल्ट स्टोर करने वाले हो, ठीक है, चूज द राइट कंटेनर जिसमें स्पेस कम लगे ऑब्वियसली, और कैसे चूज़ करना है ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा ऑब्वियसली। सेकेंड थिंग, तुम कभी भी कोई भी फंक्शन रिकर्जन फंक्शन के ऊपर से जब तुम आ रहे हो कॉल करते हुए, ठीक है, करंट स्टेट के लिए, तो तुम चेक कर लोगे कि कहीं वो आंसर प्री कंप्यूटेड तो नहीं है, दैट आंसर इज प्री कंप्यूटेड और नॉट। अगर प्री कंप्यूटेड है, ठीक है, तो सिंपली रिटर्न आंसर, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न रिकर्जन फंक्शन और यू हैव टू कैलकुलेट वाया रिकर्जन फंक्शन।
द प्रॉब्लम फॉर करंट स्टेट ऑफ रिकर्जन, ठीक है, और प्रॉब्लम। थर्ड थिंग क्या है तुम्हारी कि अगर नहीं है तो ऑब्वियसली तुम क्या करने वाले हो, रिकर्जन फंक्शन कॉल करने वाले हो, और रिकर्जन फंक्शन जहाँ भी कॉल करोगे तो इस रिकर्जन का आंसर कहाँ स्टोर कर दोगे, अपने कंटेनर में, बिफोर रिटर्निंग द आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 स्टेप हैं सिंपली मेमोराइजेशन के, और अभी हम यही करने वाले हैं। तो मैं सिंपली कोड खोल लेता हूँ, ये रहा स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग का कोड। मैं इसका रिकर्जन का कोड ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। अब मुझे इसका कंटेनर चुनना है, वो हम कैसे चुनेंगे ये देखते हैं। मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने बताया था कंटेनर जिस पे हम अपनी रिकर्जन का स्टेप स्टोर करने वाले हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है, वो तुम कैसे चूज़ करते हो। जहाँ पे भी तुम अपने रिकर्जन फंक्शन कॉल कर रहे हो, रिकॉलिंग कर रहे हो बार बार, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे देखो कि कितनी स्टेट्स चेंज हो रही हैं बार बार। तो नीचे जाओ जहाँ पे रिकर्जन फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने रिकर्जन फंक्शन कॉल किया देखो दोनों स्ट्रिंग्स चेंज हो रही हैं। S1 में भी तुम सब स्ट्रिंग ला रहे हो और S2 की भी सब स्ट्रिंग ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें अब क्या चाहिए कि कोई ऐसा कंटेनर जिसके करस्पॉन्डिंग तुम 2 स्ट्रिंग्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर करा सको, ठीक है। तुम्हारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं S1 और S2, और इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक वैल्यू चाहिए, और यू कैन से दैट दिस इज योर सम की और एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर दैट की, ठीक है। तो यू कैन ईदर स्टोर इट इन रेगुलर DP, ठीक है। तुम कोई एक n² का कंटेनर लो और उस n² के कंटेनर में हर एक की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर कर दो। और इस तरह का कंटेनर हमें क्या पता था, एक इस तरह का की और वैल्यू का कंटेनर एक हमें क्या पता था, दैट वाज मैप। तुम एक हैश मैप बना सकते हो और हर उस वैल्यू के लिए तुम उसकी एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब ये की कैसे बनेगी, तुम्हारी मेन चीज़ ये आती है कि तुम कंटेनर के लिए की कैसे बनाओगे। तो उसका एक सिंपल सा स्टेप होता है, और यू कैन से कि तुम्हें हर एक पर्टिकुलर की अलग अलग मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली देखो तुम्हारे पास 2 स्ट्रिंग है, सपोज ABC, और उसकी एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है, ये S1 है, और उसकी एक स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है सपोज CAB, ठीक है, ये है। अब तुम्हें इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू स्टोर करनी है ट्रू, ठीक है। तो तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम बोल दो कि मैं एक ABC ले लूँगा, इनके बीच में या तो स्पेस दे दूँ या कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर कर दिया, मैंने सपोज हैश स्टोर कर दिया, और इस हैश के बाद मैंने CAB स्टोर कर दी, ठीक है। तो ये अब मेरी एक करंट फुल स्ट्रिंग बन गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी एक की है, और इस की के करस्पॉन्डिंग मैं एक वैल्यू स्टोर कर दूंगा दैट ट्रू, कि मेरी जो हैश टैग के लेफ्ट की वैल्यू है और जो राइट की वैल्यू है, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं मेरी, और ये दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे की स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग्स हैं, स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, फाइन। तो मैं इस तरह एक की बना सकता हूँ और एक मैप में ये दोनों वैल्यूज डाल सकता हूँ, दैट इज की वैल्यू पेयर। और की कैसे बनानी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बीच में या तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कर दो जहाँ से तुम्हें पार्टीशन पता चल जाए कि ये मेरी 2 स्ट्रिंग्स का पार्टीशन है, ठीक है, फाइन। तो अब इसका थोड़ा सा कोड लिख के देखते हैं मेमोराइजेशन का, और कैसे होगा मेमोराइजेशन ये देख लेते हैं। तो मुझे एक कंटेनर चाहिए, तो मैंने एक कंटेनर बना लिया, ठीक है, और मैप की जगह मैं अनऑर्डर्ड मैप बनाता हूँ, ठीक है। और ये क्यों किया ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसमें कोलिशंस नहीं होने वाले हैं ऑलमोस्ट। एंड सेकेंड थिंग कि मैप की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, जब हम वही चीज़ O(1) में कर सकते हैं, तो वाई विल यूज़ मैप। अब मैं कहीं पे भी नया रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली उसको स्टोर भी कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या बनानी है, एक की, तो मैं एक की बना लेता हूँ, स्ट्रिंग की विल बी सिंपली इक्वल्स टू S1 फॉर नाउ। S1 में मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर जोड़ दिया, दैट इज हैशटैग, ठीक है। और फिर S1 में मुझे और सॉरी ये की में जोड़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम की को चेंज कर रहे हैं। और फिर की में दूसरी चीज़ क्या जोड़नी मुझे, S2, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब तुम जहाँ पे भी नई वैल्यू रिटर्न कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो, हर जगह स्टोर करते जाओ, कहीं पे भी तुम्हें कुछ भी इसके बारे में सोचना नहीं है, हर जगह स्टोर करते जाओ। तो मैं सिंपली मैप ऑफ की को ये भी करता जाऊँगा, ठीक है, मैं कहीं पे भी करूँगा। यहाँ पे तुम्हारा अगर तुम स्टोर भी नहीं कर रहे तो वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिकर्जन फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है और तुम्हारा O(1) में ही आंसर जा रहा है, ठीक है। तो इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, फाइन।
अब